Hello, welcome to the course on microwave engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about klystron tube. So basically, as we discussed, klystron tube can be used as a amplifier or it can be used as a oscillator to generate the microwave signal. So in the last video lecture, we have discussed about 2 kVt klystron which is used to amplify the microwave signal. Now in today's class, we are going to discuss about reflex klystron which is basically used as a low power oscillator. So let's start. So in today's class, we will going to discuss about reflex klystron. So as we discuss, the 2 kVt klystron will act as an amplifier to provide amplification of RF signal, and reflex klystron is basically used to have a sustained oscillation at the microwave frequency. Or very important to note, a reflex klystron has a single cavity. तो हमने 2 kVt klystron में देखा था कि वहां पे 2 सेपरेट कैविटी थी, एक बंचर कैविटी थी और दूसरी कैचर कैविटी. बट यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में एक ही कैविटी होगी. ओके, एंड द सिंगल कैविटी विल बी वर्क एज अ बंचर कैविटी एज वेल एज कैचर कैविटी. सो लाइक 2 kVt क्लाइस्ट्रॉन, द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन यूटिलाइज द फिनोमिना ऑफ वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन. मतलब जो वर्किंग प्रिंसिपल है जो 2 kVt क्लाइस्ट्रॉन में था वही रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में. रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन ऑल्सो यूटिलाइज द फिनोमिना ऑफ velocity and current modulation. Okay, but there exists difference in the construction of the 2 klystron. So as I mentioned, 2 kVt klystron में 2 kVt separates थी, buncher cavity and catcher cavity, where in case of reflex klystron there is a single cavity exist. Okay, तो उसके construction में different है and respective application of the two. So reflex klystron consists of single cavity that perform the action of both buncher as well as catcher cavity. सिंगल कैविटी है वो बंचर कैविटी का भी काम करेगा और कैचर कैविटी का भी काम करेगा. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन. यू कैन सी देयर इज अ सिंगल कैविटी, एक ही कैविटी है. 2 kVt क्लाइस्ट्रॉन में 2 कैविटीज थी. सो दिस इज अ सिंगल कैविटी. ओके, एंड इट हैज कैथोड एज वेल एज फोकसिंग एनोड. ओके, मतलब it has electron gun, and electron gun will emit the electron beam, okay, which is directed towards this end, which is known as a repeller, okay. So the structure consists of cathode and focusing anode that combinedly act as an electron gun for the tube. The cathode emits electron beam which is focused towards the inside tube बाई दी फोकसिंग एनोड. यहाँ पे फोकसिंग एनोड का यूज करके उसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनसाइड द ट्यूब फोकस कर दें. एंड यहाँ पे हमने केवीटी को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है. सो द पॉजिटिव पोटेंशियल विच इज प्रोवाइडेड एज अ इनपुट टू दिस केवीटी सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केवीटी. वो केवीटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा. ओके, एंड एज इट इज अ सिंगल केवीटी स्ट्रक्चर, the single cavity act as a buncher as well as catcher cavity separately. मतलब at particular time instant this cavity work as a buncher cavity, at different time instant it will work as a catcher cavity. तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड मोशन करेगा, करेक्ट, सो एट द टाइम ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग इट विल एक्ट एज अ buncher cavity, and during the backward movement of the electron it will act as a catcher cavity. मतलब बेसिकली क्या होगा इसमें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब हम फोकस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब एनोड से रिपलर तक जाएगा उसको हम फॉरवर्ड मूवमेंट बोलेंगे. उस टाइम पे ये केविटी बंचर केविटी की तरह काम करेगी और ये इलेक्ट्रॉन रिपलर से रिफ्लेक्ट होके वापिस आएंगे. दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिपल बाय दिस रिपलर एंड विल बी कम बैक. तो जब उसका बैकवर्ड मोशन होगा उस टाइम पे ये केविटी एज अ कैचर केविटी काम करेगी. करेक्ट. Okay, and the Rippler plate
that cause the backward movement of the electron beam is present at the opposite end of the electron gun. यहाँ पे रिपलर है जो इलेक्ट्रॉन को वापिस भेजेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापिस भेजेगा, उसको बैकवर्ड मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. सो द पोटेंशियल एट द रिपलर इज मेड एक्सट्रीमली नेगेटिव इन ऑर्डर टू परमिट द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को रिपल्ड करना है, मतलब इन शॉर्ट ये रिपलर को हमें किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव सप्लाई के साथ. बिकॉज हमें पता है हमारे फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स नॉलेज से कि लाइक चार्जेस विल रिपल्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और रिपलर को भी हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, मतलब नेगेटिव सप्लाई दिया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिपलर से क्या होंगे, रिपल्ड होके वो बैकवर्ड मोशन करेंगे. इट विल गोज टूवर्ड्स this cavity. Okay, now this repulsion is necessary in order to build up the electrical oscillation. ये हमें रिपल्सन जरूरी है बिकॉज हमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस करना है इसीलिए. तो बच्चों अगर आपको ऑसिलेटर का कंसेप्ट पता है तो ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं. क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, मतलब आउटपुट सिग्नल को इनपुट में वापस भेजते हैं. सो ड्यू टू दिस रिपल्सन आउटपुट पावर मस्ट बी फेड टू द इनपुट. So the velocity modulated electron must have to travel the backward path in order to provide the feedback. Thus repeller is used in the structure of klystron. तो रिपेलर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस भेजेगा, मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा. अब बच्चों ये रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन है, उसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग तो दो फिनोमिना पे बेस्ड है, एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, दूसरा करंट मॉड्यूलेशन. तो ये बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड करंट मॉड्यूलेशन द ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस इन द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन. तो उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम से उसका वर्किंग समझते हैं. तो बेसिकली ये जो डायग्राम है उसको हम बोलते हैं एप्पल गेट डायग्राम. क्या बोलते हैं, एप्पल गेट डायग्राम. ओके, और एप्पल गेट डायग्राम से हम इसके वर्किंग को इजीली समझ सकते हैं रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन को. तो बच्चों जैसे मैंने मेंशन किया कि ये उसका वर्किंग है वो दो फिनोमिना पे, मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और दूसरा करंट मॉड्यूलेशन. मतलब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है बंचर केविटी से, तो जब भी इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे तो ये बंचर केविटी में उसका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा. जैसे मतलब टू केविटी क्लाइस्ट्रॉन में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता था, वैसे ही रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में भी ये बंचर केविटी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करेगी और उसको बंच करेगी. इट विल बंच टुगेदर. बेसिकली ड्यू टू द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रॉन्स बंच्ड टुगेदर एट दिस पॉइंट. ओके, तो वो कैसे बंचिंग होता है इलेक्ट्रॉन का वो हम समझते हैं ये डायग्राम से. तो बच्चों यहाँ पे देखो कि दिस इज द वोल्टेज अवेलेबल एट द केविटी. सो दिस इज द केविटी गैप वोल्टेज. ओके, सो इनिशियली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स beam is emitted by the electron gun, then early electrons which are generated early electrons which is named as EE. So these are the early electron. So early electron will experience the high potential, positive potential, and due to that this early electron will move towards the repeller with the very high velocity. क्योंकि उसको हाई पोटेंशियल मिल रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा वेलोसिटी से इट विल मूव टूवर्ड्स द रिपेलर. सो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स जनरेटेड इनसाइड द कैविटी गैप लीडिंग टू कॉज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द रिपेलर विथ वेरी हाई वेलोसिटी. मतलब जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग विथ टूवर्ड्स द रिपेलर वेरी हाई वेलोसिटी. करेक्ट. Okay, and due to high velocity the electrons will penetrate deeper into the region of the repeller. तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस है, कहां से, ये डिस्टेंस फ्रॉम द कैविटी, ये कैविटी से रिपेलर का डिस्टेंस है, ये कैविटी से रिपेलर का डिस्टेंस यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस है. तो अर्ली इलेक्ट्रॉन देखो इट विल पेनेट्रेट डीपर इनसाइड द रिपेलर, वो डीपर अंदर जा रहा है, एकदम अंदर जा रहा है, उसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है रिपेलर में वो ज्यादा है. अब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, बराबर है, तो इट वुड रिक्वायर ग्रेटर टाइम टू रिपल बैक टूवर्ड्स द कैचर कैविटी.
मतलब वो अंदर एकदम अंदर जा रहा है, ज्यादा अंदर जा रहा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है टूवर्ड्स द रिपलर, तो उसको वापिस आने में ज्यादा टाइम लगेगा टूवर्ड्स द कैचर केविटी। करेक्ट, बिकॉज हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन गए टूवर्ड्स द रिपलर, वहां से रिपल्ड होके वापिस आए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेलोसिटी से गए, मतलब वो रिपलर में थोड़े अंदर ज्यादा जाएंगे, इट विल डीपर इनसाइड, ओके, एंड उसको कैचर केविटी पे वापिस आने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट, ओके। तो हमारी बात हो गई अर्ली इलेक्ट्रॉन की। अब व्हेन एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ये एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होगा, ओके, उस टाइम पे द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच इट वाज एमिटेड बाय द गन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ईयर। मतलब जब एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल जीरो होगा, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो ओरिजिनल उसकी वेलोसिटी है उससे ही वो ट्रैवल करेंगे, और उसको हम बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। एंड दिस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ईयर विल नॉट पेनेट्रेट डीपली इनटू द रिपलर सरफेस एंड गेट रिपल्ड बाय द रिपलर इन लेसर टाइम देन द अर्ली इलेक्ट्रॉन। मतलब वो ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये रिपलर, मतलब जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसका ये मतलब डिस्टेंस है, उसका ये पाथ है। तो आप देख सकते हो कि जो अर्ली इलेक्ट्रॉन हमारे थे, दे विल पेनेट्रेट डीपर इनसाइड दिस रिपलर स्पेस, उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, दे विल गेट पेनेट्रेट डीपर, और कंपेयर टू दिस अर्ली इलेक्ट्रॉन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेनेट्रेट डीपर इनसाइड दिस रिपलर स्पेस, ओके, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले आएंगे, ओके। तो उसको ये कैचर केविटी तक आने में कम टाइम लगेगा, कैचर केविटी में रिपल मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस आने में कम टाइम लगेगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को। और अगर हम लेट इलेक्ट्रॉन की बात करें, so the electrons that is emitted by the gun after the reference electron, they will experience highly negative potential, they will experience highly negative potential, उसको negative potential experience होगा, and due to that this electron को हम बोलते हैं लेट इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं लेट इलेक्ट्रॉन, and this late electron will moves with the low velocity inside the tube। तो अगर वो लो वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे ट्यूब के अंदर, तो उसका जो पेनेट्रेशन होगा रिपलर स्पेस में वो भी कम होगा। सो एज द लेट इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद द लो वेलोसिटी, द पेनेट्रेशन लेवल ऑफ द लेट इलेक्ट्रॉन इनटू द रिपलर स्पेस इज लिस्ट, ओके। तो आप देख सकते हो कि लेट इलेक्ट्रॉन जो है, लेट मी शो, ये दिस इज द लेट इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इज द लेट इलेक्ट्रॉन, ये लेट इलेक्ट्रॉन। सो ये लेट इलेक्ट्रॉन बराबर, ये लेट इलेक्ट्रॉन है। तो लेट इलेक्ट्रॉन का जो ये लेट इलेक्ट्रॉन का जो पेनेट्रेशन है, ओके, वो इतना डीपर नहीं है। तो उनको रिपल्ड होके केविटी की स्पेस में वापिस आने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बट ऑब्वियस है। तो द पेनेट्रेशन लेवल ऑफ द लेट इलेक्ट्रॉन इनटू द रिपलर स्पेस इज लेस, so thus it will takes minimal amount of time to get repelled back। तो हमने अल्टीमेटली हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी उसको हमने चेंज किया, और उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, दैट इज बेसिकली नोन एज अ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट बंच्ड while रिटर्निंग टूवर्ड्स द कैचर केविटी, बराबर है। मतलब वो रिफ्लेक्ट होके, मतलब रिपल्ड होके जब वापिस आएंगे, सो अर्ली इलेक्ट्रॉन, late electron and reference electron all will meet at this point and they will bunch together, they will bunch together, okay। और bunching क्यों हुआ, because जो early electron थे उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया इनसाइड द रिपलर स्पेस, तो उसको आने में ज्यादा टाइम लगा। जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन थे उसने अर्ली इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो लेट इलेक्ट्रॉन थे उसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अल्टीमेटली all the reference electron, late electron and early electron will reach at the same time at this cavity space and they will bunch together। मतलब bunching हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन का bunching हो गया। and how this possible, because of the velocity modulation of the electrons, okay। so in this way bunch of electron reaches at the catcher cavity, and this bunching of the electron leads to cause
करंट मॉड्यूलेशन इनसाइड द ट्यूब. ओके, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट मॉड्यूलेशन इनसाइड द ट्यूब. एंड देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द बंच्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द मैक्सिमल ऑफ दैट एनर्जी टू द कैचर केविटी. मतलब रिटर्न जब होंगे इलेक्ट्रॉन और उस टाइम पे वो उनकी एनर्जी को वो कैचर केविटी को दे देंगे इलेक्ट्रॉन. बराबर है? ओके, समझ में आ गया? ओके, इन दिस वे बाय यूज ऑफ दिस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड करंट मॉड्यूलेशन द ऑसिलेशंस आर सस्टेन्ड इन द cavity. Okay, due to the velocity modulation bunching of the electron is taken place, and due to the current modulation oscillations are produced in this resonator cavity, and we are getting the RF output at this point. Okay, microwave signal, basically microwave signal. And this L is basically nothing but the length of the distance between this cavity and repeller. ये दोनों के बीच का distance. करेक्ट, समझ में आ गया? ओके, सो इन दिस वे बाय कंबाइन एक्शन ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड करंट मॉड्यूलेशन रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन प्रोड्यूस द सस्टेन ऑसिलेशन इन द केविटी. नाउ अनदर वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज रिलेटेड टू दिस रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन इज ट्रांजिट टाइम. नाउ ये ट्रांजिट टाइम क्या है? सो ट्रांजिट टाइम इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिटर्न टू द केविटी गैप आफ्टर गेटिंग रिपल्ड बाय द रिपलर. मतलब उसको केविटी से रिपलर तक, रिपलर से अगेन केविटी तक वापिस आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट टाइम. और फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन टू टेक प्लेस द ट्रांजिट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. करेक्ट, मतलब ऑसिलेशन प्रोड्यूस होने के लिए, सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होने के लिए ये ट्रांजिट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. एंड ट्रांजिट टाइम फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन द ट्रांजिट टाइम इतना होना चाहिए, दैट इज T इज इक्वल टू n plus 3 by 4 where n is the integer. उतना ट्रांजिट टाइम होना चाहिए. बराबर है? तभी हमें सस्टेन ऑसिलेशन मिलेगा. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, देन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज जनरली 1 to 20 gigahertz. It delivers output in the range of 10 milliwatt to 2.5 watt. It is a low power oscillator. The tuning range of the klystron lies between 5 gigahertz at 2 watt to 30 gigahertz at 10 milliwatt. Okay, and theoretically the efficiency is considered to be 22.78%, and practically it is very less, it is 10 to 20%. And applications की अगर बात करें, so reflex klystrons are basically used where variable frequency is desirable, such as radio receivers, portable microwave links, parametric amplifier. We will discuss about this parametric amplifier in our course. Local oscillators of microwave receivers, and as a signal source where variable frequency is desirable in microwave generator. So basically it is used as a signal source in microwave generators. Okay. So आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? So in today's class we have discussed about one of the klystron tube which is used as an oscillator and its name is reflex klystron. So I hope कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.